डिवोर्स, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और कई बार हम डिवोर्सीज को स्टीरियोटाइप भी कर लेते हैं। उनकी साइड हमें नहीं पता होती, लेकिन हम अपने मन में ही बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, स्टोरीज बना लेते हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। और कई बार हम उनसे पूछ भी लेते हैं कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ। तो भाई, किसी को स्टीरियोटाइप करना या डिवोर्स से स्टिग्मा अटैच करना, ये सारी चीजें गलत हैं। और डिवोर्स इज एनी डे बेटर दैन एन अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप। तो आज के एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ सेकेंड टाइम सिंगल आकांक्षा सक्सेना से। और इस एपिसोड को सुन के आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं डिवोर्स के बारे में, और साथ ही ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, अपने आसपास वालों को ज्यादा सेंसिटिव कर सकते हैं। तो सुनते हैं आकांक्षा को कि उनके क्या थॉट्स हैं ऑन बीइंग सिंगल मदर, बीइंग अ डिवोर्सी, और कैसी है उनकी लाइफ एक्चुअली में। क्योंकि जो हमारे मन में थॉट्स होते हैं, जो हमारे मन में स्टोरीज होती हैं, वो हमेशा सही नहीं होती हैं। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Macri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Okay, so आज Little Fixes पे मेरे साथ हैं आकांक्षा सक्सेना. So I will be talking to Akanksha about her divorce, how society reacts to a divorced mother in India, how she is parenting her little daughter. Akanksha is a radio show host for an IT giant. She is a YouTube host and a video presenter. And she has a lovely voice. So now let's hear it from Akanksha. Hi Akanksha, we are thrilled to have you on Little Fixes. Hello, Little Fixes and Maitri. Thank you so much for inviting me. And, I can contemplate and I can actually sense a little shiver in your voice when you said divorced. Really? So what you can do is that refer me as second time single. By the way, that is the name of my podcast also. Yeah, I love that name. जब मैंने पहली बार देखा ना कि it was your Instagram handle, I was like second time single का क्या मतलब हुआ है, and it took me 2 minutes to figure it out because मेरा पहला thought ये था कि आकांक्षा का 2 बार डिवोर्स हुआ है. Thank God, because then third time is going to be the charm. At least third time it would not happen. Yeah. Okay. So, but I then realized कि it does not mean that. So, but I love your Instagram handle, the way you are, presenting those fun reels. जिससे लोग मतलब ये भी नहीं कि डिवोर्स को लेकर हर वक्त एकदम सीरियस हो जाए, आप उसको फन तरीके से प्रेजेंट करते हो और रिलेटेबल भी होता है कई बार लोगों के लिए, तो मुझे बहुत मजा आता है आपकी रील्स देखने में. And you Great, just told me that you have a lovely podcast by this name. So what is this podcast all about? Okay, so basically, I started my podcast. The first season was all about my dating experience. And once again, my grandmother used to say that because I am a left-hander, I do everything ulta. क्योंकि हमारे इंडिया में उल्टे मतलब लेफ्ट हैंडर्स को बोला जाता है उल्टे हाथ का. हाँ. जबकि इंग्लिश में राइट का मतलब अगर सीधा होता है तो लेफ्ट का मतलब उल्टा नहीं होता है. लेफ्ट का मतलब लेफ्ट आउट होता है. सो इट प्रोबेबली दैट्स लाइक द माइनॉरिटी टर्म, बट हमारे यहाँ पे उसको कहा जाता है उल्टा. तो मेरी दादी हमेशा ये कहती थी कि सब काम उल्टे करती है. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. सो व्हेन I never got the opportunity to date anybody. I dated the guy. I married him at the age of 22. Basically, that was more like a family pressure because my mother wanted to get married. That's altogether a different story. But I got married at a very young age, which played a very important role in not able to balance or handle my married life properly. दूसरी चीज, जब I was 30 or maybe 30, actually 29 when I got separated and I decided to quit my marriage. And then actually I became single. Then I realized that, this is what singlehood is like. You are self-operated person. You take your decisions on your own. And that's when I started dating. So my first episode was my dating adventures. My first season of the podcast. और जो दूसरा season है मेरे podcast का, वो literally divorce पर based है. कि जब आपकी divorce होता है या आप divorce लेने की सोच रहे होते हो, तो क्या आपकी journey रहती है. अब उसमें wildly I am just sharing my experiences. In the journey, if I'll get more people who would like to incorporate their thoughts, they are more than welcome to join me on my podcast. The name of my podcast is Second Time Single. The name of Instagram handle is again Second Time Single. You just need to hit me, not literally, but on my Instagram.
with a DM, and you're more than welcome on my podcast. ओके, तो अब आप हमें ये बताइए कि डिवोर्स के बारे में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है विच यू हेट बीइंग आस्क्ड? देखो, डिवोर्स के बारे में जो मुझे नहीं अच्छा लगता है और जो हमारे दिमाग में भी आता था, मतलब जब मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था तो मैंने ना मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का डिवोर्स सुना था। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है जानने की कि यार इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि इनका डिवोर्स हो गया। क्योंकि स्क्रीन पर या मीडिया में वो दोनों हमेशा बहुत ही परफेक्ट कपल नजर आते थे। या यूं कहूं, या मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगी, इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट टू से अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो मेरे एरा के लोग हैं दे नो दैट अर्जुन रामपाल मेहर जैसिया वर लाइक टॉप मोस्ट मॉडल्स। एंड अभी रिसेंटली उनका डिवोर्स हुआ है। तो हाँ, मतलब दे हेल्ड टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। Yeah, so if after like a marriage and relationship of more than 20 years, like 2 decades, if you decide to take a divorce, तो क्या होता है कि हम भी उनकी जर्नी का हिस्सा बन चुके होते हैं। हमें जानना होता है कि भाई डिवोर्स क्यों हुआ। बट अल्टीमेटली यहाँ पे हमें खुद को समझाना होता है कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी हर चीज नहीं होती है, ये एक प्रिवेसी है। तो मुझसे जब भी कोई ये सवाल पूछता है तो मैं बहुत आई डोंट फील कंफर्टेबल कि मेरा डिवोर्स क्यों हुआ। ऑनेस्टली डिवोर्स होने का, किसी के भी डिवोर्स होने का कोई एक सॉलिड रीजन नहीं होता है। It's always a lot of reasons that play a very major role. क्योंकि कोई भी, I mean, at least, I will not say in India, but any part of the world, कोई भी relationship break करने से पहले बहुत बार सोचता है। हाँ, एग्जैक्टली। This is the question. तो आप क्या बोलते हो फिर ऐसे लोगों से जब कोई आपसे पूछता है कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ, आकांक्षा? एक्चुअली मेरी जो स्माइल है ना, वो मैं 2 तरीके से यूज करती हूँ। एक तो लोगों को इम्प्रेस करने में और एक लोगों को स्केयर करने में। तो वो मैं दूसरी वाली स्माइल का इस्तेमाल करती हूँ फिर। ओके, डरा देती है आकांक्षा फिर लोगों को। यस यस। ओके, सो जब आपका डिवोर्स हुआ आकांक्षा, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है या लोगों से बात डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उनको सोशल मीडिया पे देखा या कभी किसी के पोस्ट पढ़े, तो मुझे पता चलता है कि पीपल अराउंड देम गेट वियर्ड एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पीपल। जैसे कि जैसे कुछ लोग होंगे वो तो अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल आपसे कनेक्शन ही कट कर देंगे। या फिर ऐसे लोग होंगे जो आपसे बोलेंगे तो बट दे विल अवॉइड दिस टॉपिक ऑल टुगेदर कि डिवोर्स के बारे में बात ही नहीं करना, ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इतने सारे लोगों में से आप किस तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट में आई और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? मैं आपको बताऊं, ये आप अगर आपका सवाल है ना, इसमें पता क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, जो मैंने बहुत क्लियरली लोगों में देखा है, इसका उल्टा होता है। अच्छा। जिसका डिवोर्स हुआ होता है ना, वो खुद को बहुत सारे लोगों से कट कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने जिंदगी में कुछ गलती कर दी है। स्पेशली men, they think that now everybody is going to think that he is a villain or he is a devil person. ऐसा नहीं होता है। कभी कभी किसी भी शादी में दोनों जनों की भी गलती होती है। कभी कभी किसी शादी में एक पार्टनर की ज्यादा गलती होती है, एक की कम गलती होती है, लेकिन होती दोनों की है। That happened in my marriage also. Okay. So first, एक्चुअली लोग कट ऑफ नहीं करते हैं, वो इंसान खुद को कट ऑफ कर लेता है। और ये मैंने 99% केसेस में देखा है। मतलब आई हैव मेट अ लॉट ऑफ डिवोर्सीज। Unfortunately, there are a lot of divorces in my family also, because in my family people think that getting divorced is better than living in a bad marriage. Okay. So what I've observed is that जिनका डिवोर्स होता है ना, वो खुद को एकदम कट ऑफ कर लेते हैं। तो पहले तो आप ऐसे मत करिए। आपके जो भी आसपास लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपकी जो फैमिली है, जो आपको सपोर्ट करती है, आप उनके साथ ओपन रहिए, उनके साथ बात करिए। क्योंकि देखिए, आपका जो फेज है ना, ये पास तो आप ही को करना है। आपका जो पेन है, आपका जो ट्रॉमा है, जो भी टॉर्चर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सब कुछ डील आप ही को करनी है। आपकी जगह पे कोई और नहीं करेगा आपके लिए। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप अपने सिबलिंग्स से, अगर आपके सिबलिंग्स हैं, इन माय केस माय सिबलिंग्स वर अ ग्रेट सपोर्ट एंड दे आर स्टिल अ ग्रेट सपोर्ट। माय पेरेंट्स आर अ ग्रेट सपोर्ट। माय फ्रेंड्स आर अ ग्रेट सपोर्ट। तो आपके लोगों को पहचानिए कि कौन आपके करीब के हैं, उनसे कनेक्टेड रहिए, उन्हें बोलिए, उन्हें बताइए कि आप लोनली फील कर रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट हेल्प। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्लीज डू नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग मेडिकल हेल्प। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो उनकी हेल्प लीजिए। बाकी लोगों का कैसा रिएक्शन होता है, ये आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप वियर्ड एक्शन करेंगे तो लोगों का वियर्ड रिएक्शन होगा। अगर आप ही बताएंगे कि डिवोर्स हुआ एंड दिस हैपेंड एंड आई हैड नो कंट्रोल ओवर इट, आई वांट टू मूव ऑन, तो लोग आपको यकीनन सपोर्ट करेंगे। लाइक अब मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि किसी ने मुझे बहुत कुछ वियर्ड रिएक्शन दिया हो, या मुझे कुछ खराब फील करवाया हो, या आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड और ऑफेंडेड। नेवर नेवर।
मे बी बिकॉज मेरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उन्हीं लोगों पे था जो मेरे लिए मैटर करते थे। Okay, so basically you chose your circle wisely also. मतलब हर जगह you were also not looking for support और जो लोग आपके साथ थे they were supportive. But Yes. you are based in a big city. कई बार ऐसा भी होता है कि शायद in smaller towns maybe people are more क्या बोला जाए कि इसके लिए नहीं तैयार होते हैं। Orthodox or maybe not open for it. तो हाँ, मैं आपको बताऊं, मैथिली, जब मेरा डिवोर्स हुआ था तब मैं जयपुर में थी। तो okay. Jaipur is not a very big city. So, you know, it's a growing city, but the हाँ, mindset of the people is not growing at the similar pace the pace city is growing. yep. All right. So, जब मेरा डिवोर्स हुआ था तो कहीं आज शायद अगर मैं एक्सेप्ट करूं तो शायद मैं जयपुर से इसलिए भी मूव कर रही थी क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ था। बट मेरे साथ एक फॉर्चुनेट केस हुआ था कि आई जस्ट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिल्ली विद अ टीवी चैनल एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल चेंज। ओके, उससे पहले मैंने कोई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं ली क्योंकि आई थॉट कि नहीं, मैरिड कपल को साथ रहना चाहिए, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मैरिज। देन देयर वाज नो मैरिज, सो माय कंसंट्रेशन वेंट डायरेक्टली ऑन माय करियर। तो मुझे जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी पहले मिली उसमें वो मैंने ले ली और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो अब इसका देखिए एक ही ऑप्शन हो सकता है, या तो आप शहर चेंज कर लें और नहीं तो वही बात है कुल मिला के कि वो चाहे कितना भी छोटा शहर हो, उस छोटे शहर में बहुत एक छोटा सर्कल भी होगा आपका जो आपको सपोर्ट करता है, तो वो आपके लिए काफी है। बाकी लोगों से आप मतलब ध्यान ही नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जितना ध्यान देंगे तो फिर उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। ये बात तो बिल्कुल सही बोली कि आप जहां भी रहते हो यू कैन कंट्रोल हु यू इंटरेक्ट विद एंड हाउ यू रिएक्ट, क्योंकि सामने वाले का रिएक्शन तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, और फिर कई बार ऐसा होता है कि देयर आर र्यूमर्स या जजमेंट होते हैं, बट यू सेड कि देयर वाज नथिंग लाइक दैट इन योर केस। अब अगर र्यूमर्स की बात करें तो मेरे केस में भी बहुत सारे र्यूमर्स होंगे ना, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इंसान आपको अपनी स्टोरी बताता है ना, तो उस स्टोरी में वो होता है हीरो या हीरोइन, और जो बाकी लोग होते हैं वो होते हैं विलन। दैट्स द सेम केस विद डिवोर्सीज आल्सो, व्हिच इंक्लूड मी आल्सो। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने लगूंगी या व्यथा या दुख सुनाने लग जाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैं बहुत बेचारी हूँ और माई एक्स हस्बैंड और माई स्पाउस ही इज अ वेरी बैड पर्सन। लेकिन द ट्रुथ इज कि मेजरली सर्कमस्टांसेस होते हैं। हर इंसान की अपनी एक अपब्रिंगिंग होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी सर्कमस्टांस में कैसे एक्ट और रिएक्ट करने वाला है। ओके, तो कुल मिला के कोई भी इंसान खराब नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी अपब्रिंगिंग और उसकी थॉट प्रोसेस ये सब सही प्लेस पे नहीं है तो वो किसी भी सर्कमस्टांस में गलत तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर र्यूमर्स की बात होगी तो आपको हमेशा पहले दोनों ही किस्से सुनने होंगे, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। बट माई क्वेश्चन इज, हु आर यू टू डिसाइड? इट्स बिटवीन द कपल, दे विल डिसाइड। रही बात र्यूमर्स की, तो हाँ सुनते रहिए रूमर्स। अब रूमर्स तो फिर मूवी स्टार्स के भी आते हैं, और अगर मेरे रूमर्स फैल रहे हैं तो आई कंसीडर माई सेल्फ नॉट लेस देन अ मूवी स्टार। Okay, that's a way to look at it. Wonderful. So, आकांक्षा, अच्छा, अगर इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं तो अभी जैसे थोड़ी सी आपने बात करी कि डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग मेडिकल हेल्प, तो व्हाट are the consequences that show up in people after divorce, like या क्या चीजें होती हैं जिसके लिए उन्हें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है? डिड यू आल्सो टेक अ साइकियाट्रिस्ट? नहीं, मुझे कोई साइकियाट्रिस्ट या फिर थेरेपिस्ट की हेल्प की जरूरत तो नहीं पड़ी। बट येस, आई वुड नॉट से दैट मेरा डिवोर्स हुआ था आई वाज वेरी हैप्पी। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। फॉर 6 months आई वाज इन अ न्यू सिटी, in a new job, and in fact my daughter was staying with my parents at that time because I just shifted to a new city like Delhi. Okay, so मैंने प्लान ये किया था कि मैं साल भर के बाद मेरी बेटी को दिल्ली शिफ्ट करूंगी, तब तक वो जयपुर ही रहेगी मेरे पेरेंट्स के पास में। तो वो लेकिन एक 6 महीने का पीरियड था जो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेंटली वाज टू मच ऑफ स्ट्रगल। मतलब इतना स्ट्रगल था कि एक बार को मुझे मेरे डिवोर्स के डिसीजन पे डाउट होने लग गया था, और मुझे लगा था कि मैं शायद अपने एक्स हस्बैंड से रिकंसाइल कर लूं। You know, you feel that much lonely and alone and exhausted and आपको एक mental trauma भी लगता है। तो लेकिन fortunately in my case, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी बेटी भी मेरे पास ही थी, मैं हर हफ्ते अपनी बेटी से मिलने के लिए जयपुर चली जाती थी, और काफी हद तक आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। तो मैंने वो टाइम पीरियड निकाल लिया, लेकिन मैं किसी और को ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगी। एंड ऑन दैट पॉइंट आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट दैट on my Instagram handle, that is Second Time Single, which is my podcast handle, you will find a link. That link, if you click on that link, I have created a divorce support group. So आपने नोटिस किया होगा कि बहुत तरीके के सपोर्ट ग्रुप होते हैं। जैसे अगर किसी को अल्कोहल की प्रॉब्लम है तो अल्कोहल, दैट्स कॉल्ड ए मीटिंग, लाइक
वो सपोर्ट ग्रुप होता है। लेकिन डिवोर्स के लिए मुझे नहीं लगता है मैंने अभी तक कोई सपोर्ट ग्रुप सुना है। तो अगर ऐसा एक सपोर्ट ग्रुप आपके आसपास आप फॉर्म करते हैं या उसका पार्ट बनते हैं, मैं ये नहीं कह रही वो सपोर्ट ग्रुप की जिंदगी भर आपको जरूरत पड़े, बिल्कुल भी नहीं पड़े, यू फाइंड अ लाइफ पार्टनर फॉर योरसेल्फ, बट वो भी 6 महीने साल भर का जो टाइम पीरियड होता है ना, विच इज लाइक रियली हार्श ऑन योर इमोशनल हेल्थ, तब वो सपोर्ट ग्रुप आपको काम में आ सकता है। तो आप वो सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लाइक आई सेड दैट प्लीज डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग मेडिकल हेल्प। इन माय केस, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ zumba, I was already into dancing. My work is also more or less very creative, so I and basically I worked on myself actually. मतलब मैंने मेरे करियर पे और मैंने मेरे खुद पे शायद उस टाइम में बहुत काम किया। So that is wonderful. और आपने अपने आप पे काम किया and you came out of that situation and now you are making people aware about it. और साथ ही आप उनकी हेल्प भी कर रहे हैं by running the support group. So this support group is online, right? Anyone can join it. Yes, this support group is online. When you click that link, it will give you a link where you can find the date and time of the meeting. Okay. If more than 4 people click on that date and time, then we will hold a support group meeting for that. Okay, तब तो फिर इसका link I will add in my show notes also or in the podcast description also. So if someone is interested, they can go ahead and join your support group. So अब आकांक्षा डिवोर्स से अगर पेरेंटिंग के ऊपर आए तो पेरेंटिंग एज अ सिंगल मदर, इसमें आपकी क्या एक्सपीरियंस रहे? हाउ टफ वाज इट फॉर यू? Okay, so in my case, it was not at all tough because ever since my daughter was born, I was more or less a single parent. Okay. And मैं शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अगर आप इंडिया में इनफैक्ट अगर आप अक्रॉस ग्लोब स्टैट्स चेक करेंगे, यू विल फाइंड दैट मदर इज द प्राइमरी पेरेंट ऑफ एनी किड. Ideally, both parents should be equally responsible for kids' upbringing, but in most cases, mother acts as the primary parent. Primary parent क्या होता है कि बच्चे के खाने से लेकर उसके स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तक वो सब चीजें मम्मी को पता होती हैं, लेकिन पापा को ये भी नहीं पता होता है कि बच्चा जो है कौन से सेक्शन में पढ़ता है. अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आज उसको स्कूल से पिक कर लेना, तो दे माइट आस्क. मैं ये नहीं कह रही सारे फादर्स ऐसे होते हैं, मेरे फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं. माई फादर वॉज लाइक, इनफैक्ट हमारे घर में मजाक होता था कि हमारी 2 मम्मियां हैं. माई फादर यूज्ड टू कुक, माई फादर यूज्ड टू डू एवरीथिंग एज एन इक्वल पेरेंट. तो हमारे इंडिया में अगर आप नोटिस करेंगे, या इनफैक्ट ग्लोबली भी दिस इज अ कल्चर, मदर इज द प्राइमरी पेरेंट. तो क्या आपको नहीं लगता है कि सभी मदर सिंगल पेरेंट ही होती हैं? You know what, आज ही मैं इस बारे में सोच रही थी. मतलब कुछ बात हुई मेरे हस्बैंड से, एंड आफ्टर दैट आई वाज थिंकिंग कि इनको तो ये भी नहीं पता है. मतलब आई कांट रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट, बट इट वाज रिगार्डिंग आवर डॉटर, एंड मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि इनको नहीं पता है. तो व्हाट यू जस्ट सेड, यस, इट मेक्स सेंस. मैं एक्चुअली इस पे एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी, सो दैट ऑल मेन डोंट गेट एंटी मी. एक्चुअली इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम मदर्स की भी है. मदर्स, दे बिकम सो ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चाइल्ड, दे डोंट लेट फादर्स टेक एन डिसीजन. That is also one very important aspect to it. They don't, let fathers take decision. Only decision वहां पे लिया जाता है जहां पर अगर फादर को मनी वाइज कोई डिसीजन लेना है. बाकी मैक्सिमम डिसीजन मदर्स ही लेती हैं अपने बच्चों के, अनलेस इट इज हायर एजुकेशन. इनिशियल लेवल पे मोस्टली मदर्स टेक द डिसीजन. सो एक स्टेप मदर्स की तरफ से होना चाहिए कि लेट फादर ऑल्सो टेक द डिसीजन. एक स्टेप फादर्स की तरफ से होना चाहिए, शो इक्वल इंटरेस्ट इन योर किड्स पेरेंटिंग. नाउ कमिंग टू माई सिंगल पेरेंटिंग पॉइंट, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा. मेरी बेटी जब से हुई थी तब से मैं ही सारे डिसीजंस ले रही थी, उसके फाइनेंशियल्स मैं ही हैंडल कर रही थी. Yes, there was time when I was working full time with the radio station, and so my husband used to take care of her during the daytime. But but whenever I asked for help, he was always there to take care of my daughter. But the point is, जब आपको किसी से हेल्प मांगनी पड़े तो फिर आप मेड से भी हेल्प मांगते हो ना. Ideally, it should be something like that. The fathers should feel that it is my equal responsibility. Home chore is equal responsibility. Kids, equal responsibility. The word I am helping you comes like as if that is my responsibility and you're doing me a favor by helping me. So this mindset should not be there. हाँ, मुझे लगता है ये अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है इंडिया में अभी तक, एटलीस्ट टिल आवर जनरेशन यही हुआ है कि कहीं ना कहीं वो बचपन से ही हर किसी के मन में इनग्रेन हो जाता है कि जो मम्मी है वो वही सब देखेगी और पापा दूर दूर से मतलब करेंगे. मोस्टली इट हैपेंस. और कई बार इन लोगों के दिमाग में थॉट भी नहीं आता, हस्बैंड्स के दिमाग में, लाइक व्हेन माय डॉटर स्कूल स्टार्टेड और फिर ये पैंडेमिक हो गई,
आई डिसाइडेड कि मुझे उसको फोनिक्स क्लास में डालना चाहिए. मुझे ये आइडिया आ गया, बट ये आइडिया उनको नहीं आया, और मैंने उसको डाल दिया फोनिक्स क्लास में. उसके बाद उनको बताया कि ये उसका एडमिशन करवा दिया मैंने फोनिक्स क्लास में ऑनलाइन, शी हैज ज्वाइन. तो ही वाज लाइक अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज है. तो मतलब थॉट भी नहीं आता है कई बार. ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट इन्वॉल्व. वो हाँ, बहुत एग्जैक्टली. बट वो क्या होता है, एक होता है प्राइमरी पेरेंट, एक्टिव पेरेंट. हाँ. ओके, सो ही इज इन्वॉल्व बट पैसिवली इन्वॉल्व. यस, जैसे राइट नाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ हर बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग. वरना वो तो पहले से चिल्लाने लगती, मम्मा आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? मुझे पापा के साथ रहना पड़ेगा. वो बच्चे की भी फिर वैसी ही एक्सपेक्टेशन बन जाती है, बच्चे की भी सेम वैसी एक्सपेक्टेशन बन जाती है. तो इसीलिए मतलब आई डोंट नो ये कैसे चेंज किया जा सकता है, बट चेंज करने के लिए यू नो वुमेन हैव टू टेक द स्टेप, एंड फादर्स दे नीड टू बी मोर कोहेसिव, दे नीड टू बी मोर कोऑपरेटिव. And how does your daughter feel? Does she also get judged maybe by people around her, या maybe in school? ऐसा कभी कोई इंसिडेंट होता है क्या? या फिर एटलीस्ट मैंने मूवीज में, टीवी में ऐसा बहुत देखा है, तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ सिनेरियो क्या सही में ऐसा होता है? एक्चुअली मेरी डॉटर के साथ तो मुझे याद नहीं है कि ऐसा कभी कुछ हुआ है, क्योंकि शी वाज 5 when we got separated. Okay, I explained things to her that this is the situation and that's how the situation is going to be, that you will live with me. Whenever you want to meet daddy, you can call him and you can meet him, you can stay with him. There is no problem from my side. And at the moment while I'm talking to you, she is with her father only in Jaipur. She's been living with her father for over 15-20 days. So this whole month, this is the first time actually she is going to live with her father that long. Otherwise, she stayed with her father. Okay, so as far as parenting is concerned, again, I would just like to quote in my case only that my husband is just a loving father. Still, he, you know, I mean, he's not very, very involved in taking care of the finances and the education part. He just, like, whenever, if she wants to spend time with him, then he makes time. Otherwise, not much involvement is there. So that is all right with me. That's how we decided our paths. So, as far as judging is concerned, ऐसा तो वैसे कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, my daughter is a very calm and a very cool child. She is not very talkative. You know, she talks only when she feels like, and in fact, now she's opening up a little bit, but otherwise she's a very calm child, which is very opposite of the way I am. Okay, I am very extrovert kind of person. She's quite introvert. So what people think, how ये मेरे साथ हुआ है कि लोगों को लगा कि शायद डिवोर्स की वजह से ये ऐसी हो गई है, तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि डिवोर्स की वजह से ऐसी नहीं हुई है, आप इसको डिवोर्स के बाद मिल रहे हो, बट ये बचपन से ऐसी है. शी इज ऑलवेज अ वेरी काम चाइल्ड एंड यू बेसिकली कंपेयरिंग हर विद मी. So stop comparing her with me. I'm a different individual. She's a different individual. She has her own nature and personality. तो आप मुझसे कंपेयर मत करो उसको. अगर ये करना बंद कर दोगे तो आपको एकदम नॉर्मल चाइल्ड लगेगी. हाँ, exactly. अब in my case, my husband is also a very calm person. I am not calm, but I am also introvert. But my daughter is very outgoing. Like दो introverts calm people के साथ रहकर भी वो outgoing है, extrovert है, किसी से भी बात कर लेती है, जो उसको करना होता है कर लेती है. तो you cannot compare. हाँ, वो बहुत लोगों को, और मेरे केस में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मेरी बेटी के लिए है that I was a radio jockey. I'm still a radio jockey. I was, you know, I used to come on TV. तो वो ना एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल जॉब नहीं था. इनफैक्ट ट्रेडिशनल जॉब नहीं है, और तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस भी हो जाता है कि ज्यादा लोग इस वजह से भी कंपेयर करते थे कि मतलब शी बिकम लाइक मी और नॉट, बट शी विल बिकम लाइक हर. Yes. Why would she become like me? She would become like her. Yes. So, Akanksha, if there is someone who is contemplating getting a divorce, or maybe चलो पहले who's contemplating getting a divorce, so what will be your suggestion to them? Because मैंने कुछ WhatsApp groups की मैं member हूँ, उसमें भी कई बार लोग अपनी situation डालते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, and if people suggest separation also, तो people are like कि नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, या फिर लोग क्या कहेंगे. There are so many thoughts. So what are your thoughts for them? Like, what is your message? Yeah, so honestly, you know, post I got divorced, I was really surprised to see that I still get a lot of DMs from women sharing their situation and asking me, what should we do? Should we take divorce? So I always reply to them that I am not a relationship expert. For this, please Google and see is there is any relationship expert near you. And, you know, it might sound like a very frivolous advice, but this is the straight advice I can give.
आई कैन नॉट जज योर सिचुएशन. वंस अगेन, आप अपनी सिचुएशन मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हो या बता रहे हो. जब तक आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, तब तक कोई भी उस सिचुएशन को जज कैसे कर सकता है. ओके. दूसरी बात यह है कि आप जो भी रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, आप प्लीज उससे कंसल्ट कीजिए, उससे अपनी सिचुएशन बताइए, और फिर दे हैव एग्जैक्ट मेथड्स, दे हैव थेरेपीज. उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है और आपको लगता है कि नहीं, डिवोर्स लेना ज्यादा बेहतर होगा, तो आप ले सकते हैं डिवोर्स. उसमें फिर बाकी लोगों का सोचना नहीं सोचना, वो सब तो फिर बात की बात है. हाँ, बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं, if you're stuck in domestic violence, I would reframe it. बहुत से ऐसे लोग हैं who are stuck in domestic violence, which includes male and female. And I'm quoting here that domestic violence happens with males too. Because I have seen it firsthand. I have experienced it firsthand with males I have dated in past. When they revealed it to me that they got divorced because they were into domestic violence and their wife used to beat them, I could not accept that this is also the picture of society. Something like this also exists. Okay. Agar ye situation hai, so this is a dire situation. You need to quit your marriage ASAP. Because if the person can hit you once, that person will hit you always. If you think that person will change, that person will never change. If you want to give it a try, please ask that person to go to a psychiatrist or a psychologist. In fact, in such cases, psychologists can never be of any help. Psychiatrists can help. That person requires medical help. That person requires medicines. Only then, you can live with that person. That's a dire situation. If that is the situation, please quit your marriage. Okay. Or if there is someone who has just had their divorce, so what will be your message to them? Okay, so there are various reasons to get divorced. Okay. So in my cases, people used to suggest me that, in fact, I dated a guy and he suggested me that, why are you looking for marrying again so soon? You should enjoy your life. Do one thing, go for marathons, join gym, do Zumba, join dance class, do something which you enjoy doing. I had to explain him that I was in a bad marriage. I was not stuck in a cage. So I was doing all these things. Okay. So pick anything that you like doing. Okay. Take out time for yourself. And everybody's journey is different. And honestly, I can tell you that only you can handle your situation. कोई और नहीं आएगा आपकी situation handle करने के लिए. अब या तो आप सिर्फ बैठ के रो सकते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही डिवोर्स क्यों हुआ, तो उसका genuinely कोई जवाब नहीं है. या आप उस सिचुएशन से उठ सकते हो, उठ के आप ये सोच सकते हो कि मैं क्या वो चीज थी जो करना चाहता था शादीशुदा जिंदगी के दौरान नहीं कर पाया, वो कर सकते हो. आगे के अपने प्लान्स बना सकते हो. कोई ऐसी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हो. अगर सिंसियरली आपको मैराथन में इंटरेस्ट है, तो प्लीज रन अ मैराथन. मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो आई नेवर ऑप्टेड फॉर इट. ओके. दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि वंस अगेन, इफ यू फाइंड इट एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग और प्रमोटिंग माई सेल्फ, yes, I am promoting myself and I'm promoting my podcast. But yes, in my podcast is about a good cause. My podcast comes with good intention. So you can join my divorce support group. Share your feelings. कई बार क्या होता है कि जब तक मेरा डिवोर्स हुआ था, तब तक मेरे जो कलीग्स थे या मेरे फ्रेंड्स थे, they were married, they had kids. Till date also, this is my problem, that I don't go to a lot of, house parties or couple parties just because I am the single one there. And it really makes me feel lonely when I'm the only one there and rest everybody's with their partners. So honestly, that's why I don't go. A lot of friends of mine, we cannot hold a house party, just because their spouse feels that what will they do if they come to my house? And that's a very genuine thing, that's a very, very normal, genuine thing. They will not have any company. तो ये एक बहुत बस थोड़ी सी चीज होती है. तो इसमें आपको मेरा डिवोर्स सपोर्ट ग्रुप जो है, वो अगर हेल्प के लिए हो सकता है तो दैट वुड बी ग्रेट. अगर आपके दोस्त हैं और अगर आपकी सहेलियां हैं तो बहुत अच्छा है, प्लीज उनसे कनेक्टेड रहिए. ओके. तो मुझे लगता है कि मैंने जो बहुत सारे जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, या ये जो बहुत प्रिवेलेंट क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग डिवोर्स, चाहे हम कोई ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ें या फिर सोशल मीडिया पे देखें, मैंने सब कुछ आपसे पूछ लिया है. और जब लोग इसको सुने तो वो भी समझ पाए कि दिस ऑल इज सिचुएशन स्पेसिफिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एज यू सेड, कि सबकी सिचुएशन ही अलग है, राइट? तो ओके कांक्षा, इट वाज लवली गेटिंग योर व्यूज एंड हाउ ओपनली यू शेयर्ड योर साइड रिगार्डिंग डिवोर्स. और इंडिया, आई डोंट नो इंडिया की सिचुएशन ही ऐसी है या फिर सब जगह ऐसा होता है, बट whatever I heard from you, it is a very I would say
रीअश्योरिंग ऑल्सो इन सम वे कि हाँ लोग इससे बाहर आ सकते हैं। आपने बता दिया कि आपकी पॉडकास्ट है दैट इज सेकंड टाइम सिंगल, जिसको जाके लोग सुन भी सकते हैं और साथ ही आपका सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। That's it, guys and girls and people whosoever listening. I am available on Instagram. My podcast handle and my podcast name is Second Time Single. So please do give it a listen. And if you're somebody who shares same relationship status like me, second time single, please more than welcome. And if by going second time single means like divorced twice, it's all right with me. So you have achieved something twice. So be happy about that, and just connect with me. And I always say that handle my account with love and care. Okay, Akanksha, thank you so much for being on Little Fixes podcast and talking to me about your experiences and giving reassurance to people who are listening to it. Thank you. Thank you so much, Maitri. It's lovely, always lovely talking to you. And thank you so much for inviting me. तो अब हमें किसी से ये नहीं पूछना है कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ। तो आकांक्षा से बात करके आपको ये भी समझ में आया होगा कि डिवोर्स होना हमेशा खराब नहीं होता। ऑब्वियसली कोई भी ये सोच के शादी नहीं करता है कि वो एक दिन सेपरेट हो जाएंगे, बट अगेन अगर आपकी रिलेशनशिप में आप उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो डेफिनेटली इट इज़ अ बेटर आइडिया टू सेपरेट। तो अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड से आपकी कुछ हेल्प हुई है या किसी और की हेल्प हो सकती है, तो डू शेयर दिस एपिसोड विद देम। और आप लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को @लिटिलफिक्सेसपॉडकास्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं littlepixespodcast@gmail.com पे, और आप हमें अपने किसी भी फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड आएगा इस सैटरडे को, ऑन 19th of June, क्योंकि ये होने वाला है हमारा फादर्स डे स्पेशल एपिसोड, जिसमें मैं बात करूंगी अपने हस्बैंड से और अपनी बेटी से अबाउट पेरेंटिंग। मतलब बहुत ही मजेदार एपिसोड होने वाला है। तो फिर सैटरडे का वेट करो और सदा सैसी रहो। बाय।